आप देख रहे हैं कल की न्यूज। I can't hear you, Goja. We are fortunate enough to have you once again, ma'am. You know you are a role model for us, and having once again actually means that. And we are lucky enough once again. Grateful to you for remembering me. Oh, Tell me what you want. Yeah, go so ahead. ma'am, we want to hear about your book, Fearless Governance, because we believe that every woman is a warrior. And we could able to connect the entire team of World Association of Women Warriors, able to connect about the book, and then we want to know that how you think that each woman is a warrior. Each woman is a warrior. Where did you doubt it? I don't know. Giving birth to a child, she's literally a warrior. Because giving birth to a child, I have given birth to a child. I think that was the most difficult part of my life. So when you give birth to humanity, every child, and she does it more than once, she's actually fighting for her own life. But to give life to another person and to humanity as a whole, every child, every person on this earth is a product of the mother womb. While the fathers played a role, have you heard of fathers? See, children having fathers, but have you ever had a child born without a mother? So every mother is a warrior. Then she becomes a mother because she literally fights for her life to bring birth to a child. That's for me, every mother is a warrior. मैं हार नहीं मानी, बैसाखी हो चाहे आर्टिफिशियल लेक हो, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। चाहे कितना भी बात आए, मेरे सामने घूमने वाली नहीं हूँ। मेरी जो जनता मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं है। Congratulations to all the other awardees, and I would again like to thank the Wow Foundation for felicitating so many women who have made a mark in their own respective fields, which will become a motivating factor for other women in the society and motivate women to come forward and embrace their actual potential. Thank you so much. हमारा उद्देश्य है कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जो सभी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योर और नेटवर्किंग के अवसरों को बढ़ावा देंगे। वाव न केवल प्रावधान के मंच के देने का लक्ष्य रखता है, बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि उसके सब मेंबर्स कंसिस्टेंटली ग्रो करें और साथ साथ बिजनेस में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के साथ संभाल रहे। Now, I would request esteemed guest of honor, guests and international directors of WOW to light a lamp. Thank you for being here today
and sharing your stories with other women because you all are role models. And I would like to thank again Miss Harpreet Kaur and Miss Prerna Kohli for being the inspiration, for being the role model, for creating a benchmark for all the women that no matter where you are, what struggles you are facing, you can still create a name in the world, not only in India. You can create your name globally. And if you see the journey, I'm sure you must have gone through the journeys of these people on our social media. Each word of their journey inspires us. I tell you that when I see a woman name written as first in particular category, the way I saw Dr. Kiran Bedi, first woman IPS officer. And when I saw Ms. Harpreet's name written as first woman CEO from aviation industry. And when I saw Ms. Prerna Kohli's name as 4-time gold medalist, I was full of joy and I was feeling that I have to even do something. If not at par, then at least something to follow such women. And one day I'm sure I'll make you all proud. When we come together, we make changes to the society that are profound and that we carry on to the generations and make our world a better, more diverse and inclusive place. And that's what I think WOW Foundation has been doing. Shahbaji, Mamta ji, and of course our men in minority. So what lies ahead is a real challenge towards equality. At the UN, we are aiming for a world which is equal, 50-50, as per the Sustainable Development Goal 5. To have equal birth by 2030, and 2030 is not that far. It's 8 years, but 8 years are enough if we want to see a change, and that change has to come within all of us. It starts from home, it starts from inside of us. When the children are born into our homes, we do not see the children as boy or girls, we see them as children, and we give them the power to dream. So please allow every single child in your home to dream. Change your perspective, change your mindset, and with WOW and all of us coming together, hopefully we shall get a better world for the future generations of tomorrow. Namaskar. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये सुंदर संसार मुझे जिसने दिखाया हो और क्या लिखूँ मैं उसके लिए, जिसने मुझे लिखना सिखाया हो। मैं वुमेन डे पर सभी भारत की माताओं को नमन करना चाहता हूँ। और आज हमारे साथ ममता घोड़ियाल जी और जोया अग्रवाल जी हैं। मैं इससे कुछ पूछ सकता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट है, वाव प्रेसिडेंट, एंड वी आर रियली वेरी प्राउड कि वो हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों महिलाओं को जो है इंस्पायर करा है, एंड नाउ शी विल बी गिविंग more wings to the others. And we are really very grateful to announce to everyone that she is a proud ambassador, president with us. मैम, लड़कियों की उड़ान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उड़ान सबसे बड़ी चीज़ है। उड़ान के लिए आप देखिए, हमारी भारतीय बेटियों के पास तो हमेशा से ही पंख थे, लेकिन हम सबके हाथ में यह उनको रियलाइज कराना है कि आपके पास पंख है, आपको सिर्फ उनका इस्तेमाल करके उड़ान करनी है। और हमारी सारी भारत की बेटियां उड़ान भरेंगी उसके पास, लेकिन हम सबको उसके लिए इकट्ठा होकर उनको प्रेरित करना है वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए। क्योंकि आज के जो संसार में हम रहते हैं, वहाँ पे बहुत जंजीरें हैं जो हमारी औरतों को टाई रखती हैं, जो पकड़ के रखती हैं। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए हम सबको इकट्ठे मिल के अपनी बेटियों को प्रेरित करना पड़ेगा कि जो भी वो आसमान में ऊंचाइयाँ छूना चाहती हैं वो छू सकती हैं, और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी बात आपने कहा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और फाउंडर हूँ mindchild.in की, जहाँ हमारे पास 75 से ऊपर साइकोलॉजिस्ट हैं मेंटल इमोशनल हेल्थ लुक आफ्टर करने के लिए। आज जो वाव ने ये प्रोग्राम करा है, ये बहुत ही उचित है महिलाओं के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और इस साल की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर टुमारो सस्टेनेबिलिटी, जो बहुत ज़रूरी है कि औरत कंधे से कंधा मिला के चले, जो चलेगी अगर ऐसे बढ़िया प्रोग्राम होंगे जहाँ पे हमें men भी सपोर्ट करेंगे। So all the best to all the warriors and women who are doing wonderfully well in their field. Congratulations on this Women's Day to each woman out there.
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज मेरे सामने है चंचला पटेल जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। इनका इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन देना काफ़ी छोटी चीज़ हो जाएगी और ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जो मुकाम इन्होंने हासिल करा है बहुत ही कम लड़के और लड़कियां हासिल कर पाते हैं। मैं 100 बार इनको सैल्यूट करता हूँ। और चंचला पटेल जी, आप अपने बारे में सबसे पहले आप बताओ। जी, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, चंचला पटेल, जिगली चैलेंज, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं जो जेएसवेल फाउंडेशन में मैं कार्यरत हूँ स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पे। अभी जो मुझे अवार्ड मिली है वो दिव्यांग क्षेत्र के मतलब जो स्पेशल हैं उनके लिए रोल मॉडल। साथ ही मुझे दिव्यांग क्षेत्र के लोग ही रोल मॉडल नहीं मानते, सामान्य लोग भी मानते हैं। एक बिहार की लड़की है सपना, वो 12वीं पास हुई और मेरे बारे में वो पत्रिका पेपर वगैरह में पढ़ते रहती थी, तो वो मुझे रोल मॉडल मानते हुए मेरे पास रहने के लिए मम्मी पापा को इतना रिक्वेस्ट की और आज वो मेरे साथ रहकर पढ़ाई भी कर रही है। तो ये तो सभी लोग मानते हैं कुछ हटके काम होता है तो, लेकिन इतने जल्दी मंजिल किसी को नहीं मिलते हैं। छोटे मोटे कठिनाई सामने आते रहते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। ऊपर वाला कहते हैं ना, एग्ज़ाम उन्हीं का लेता है जिनको एग्ज़ाम देने की ताकत रखते हैं। और मेरे साथ घटनाएं इतने घट चुके हैं कि गिनूं सर्जरी वगैरह का तो बता नहीं सकती, 10-12 से ज़्यादा सर्जरी हो चुकी हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे शरीर में कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है। मैं 1998 में एक्सीडेंट होने के बाद कुछ साल बाद मैं आर्टिफिशियल लिंग लगाकर बहुत अच्छे खुशी से जीवन यापन कर रही थी। और अभी सितंबर में मैंने अगस्त में सियाचिन ग्लेशियर का ट्रैकिंग में गई हुई थी आर्टिफिशियल लेग लगाकर। लेकिन अभी अक्टूबर में एक्सीडेंट हो जाने से फिर से एक हड्डी टूट गई जिसकी वजह से आर्टिफिशियल लेग नहीं लगाते बन रही है। तो बैसाखी के सहारे अभी चल रही हूँ। लेकिन बैसाखी हो चाहे नकली पैर हो, मैं जो करना चाहती हूँ ठान लेती हूँ, उसको करके ही दिखाती हूँ। अभी जब ये अवार्ड के लिए मैम ने फॉर्म फिलअप कर रहे थे, मुझे चयनित किए तो बोल रहे थे कि मैम आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली आ पाएंगे क्या? मैं दिल्ली क्या कहीं भी जा सकती हूँ। जब मैं ठान ली हूँ मेरे जो कार्य हैं वो करना है और मुझे पीछे नहीं हटना है। चाहे मुझे 2 बैसाखी लेके जाना पड़े, चाहे व्हील चेयर से जाना पड़े, मैं करके रहूँगी। और मैं जो काम कर रही हूँ स्पेशल बच्चों के क्षेत्र में ज़्यादातर कर रही हूँ क्योंकि मैं विशेष शिक्षक हूँ और मैं खुद अपना पहचान नहीं बना रही हूँ। हमारे संस्था में जो बच्चे हैं स्पेशल बच्चे, उनके टैलेंट को पहचान कर उनको भी मंच दिला रहे हैं। हमने कोविड के समय बहुत सारे बच्चों को डांस के लिए नेशनल इंटरनेशनल में विनर भी रहे हैं मेरे द्वारा सीखे हुए बच्चे भी। और एक विभू अग्रवाल है डाउन सिंड्रोम, वो बहुत ही अच्छे से डांस करता है। आप यूट्यूब में उनका डांस रिसर्च करेंगे तो दिख जाएंगे। डाउन सिंड्रोम है प्लस उसके हाथ है मल्टी डिसेबिलिटी है। तो इस तरह से जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनके हुनर को मंच देना हमारा ये कर्तव्य है और उनका पहचान बना रहे हैं। अपनी ही पहचान के पीछे मैं नहीं हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाना मेरा फर्ज है। चंचला पटेल जी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि इरादे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और इसी जो ये पूरा कार्यक्रम जो है आपका जो आपने अचीवमेंट हासिल करी, इसके बीच आप सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला आपको, वो सपोर्टिंग रोल किसका रहा? मतलब किसका सपोर्टिंग रोल सबसे ज़्यादा मानती है, चाहे मानसिक तौर पर चाहे ग्राउंड लेवल पर, अगर जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको करा, जिसका सबसे बड़ा अहम योगदान आपके लिए करा है? मेरे सपोर्ट के लिए तो हर किसी ने आगे आए। जब घटना हुई उस समय पैसे के लिए लेकर बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि मेरे पिताजी थे वो छोटा सा किसान है, तो उसकी वजह से उस समय बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था। बाबूजी गोद में उठाकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते थे। लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ाई की, स्ट्रगल की, तो धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचरों ने, सब ने मुझे सपोर्ट करने लगे। अभी जब मैं 1 लेग से डांस करी तो खासकर जो मेरे फ्रेंड हैं अरविंद तिवारी जी और अरविंद पटेल जी हैं, उन्होंने मुझे खासकर बोले कि नहीं आप 1 लेग में डांस जरूर कर सकते हो, एक बार विनर रहे हो तो क्या हुआ, अभी तो हज़ारों बार विनर बनना है कर। और ऑनलाइन कंटेंट्स में भी मैं 16 बार विनर रह चुकी हूँ और योगा में 1 लेग से 2 बार नेशनल और इंटरनेशनल में भी विनर रह चुकी हूँ। बहुत अच्छा चंचला जी आपने हमें बताया और काफ़ी मुकाम आपने हासिल करे हैं। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया, आपने इतने मुकाम हासिल कर रहे हैं कि हमें गिनना भारी पड़ जाए, मतलब इंसान को गिनते गिनते ही हो सकता है। लेकिन
आप ये सोच सकते हैं कि इंसान बस देखकर ही थक जाता है और चंचला जी नॉन स्टॉप मुकाम हासिल कर रही हैं और अपने हौसलों से मुकाम हासिल कर रही हैं बिना रुके। ऐसा ही हौसला, ऐसा ही जज्बा हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को भारत में रखना है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे दिव्यांग हो। दिव्यांग तो वैसे भी स्पेशल कैटेगरी माननी चाहिए अपने को, और हौसला जितना हो सके। बैसाखी अगर आपके पास है तो बैसाखी सिर्फ इरादों की होनी चाहिए, हौसलों की होनी चाहिए, एक कठिन परिश्रम की होनी चाहिए, जब भी आप एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब। कल की न्यूज, अखंड भारत की आवाज।